नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ 21st June 2017. As usual, what we discuss in this session is headlines, death session, birth session. Apart from that, we'll be discussing the question answer session which is related to SSC CGL. So here we go. Starting with the headline, 21st June 1948 की अगर हम बात करें तो what happened today is Lord Mountbatten resigns as Governor General of India. Now, who is Lord Mountbatten? Yes, of course, he was the last Governor General of India, and not the last just Governor General. Apart from that, what happened was formally the last Viceroy also. If we talk about him, he was the last Viceroy of the Independence India. Okay, if we talk about, there are a confusion between who was the last Viceroy. So here we can get two answers. That is, the last Indian Viceroy is C. Rajagopalacharya, and if we talk about only the last Viceroy, so it is Lord Mountbatten. Moving ahead to the next session, that is birthday. Now, whose birthday was on 21st June? If we talk about Benazir Bhutto, 1953, 21st June was her birthday. Now, who is she? She was a great personality. If we talk about her, she was the 11th Prime Minister of Pakistan. Apart from that, she was the first woman to lead a Muslim majority nation. So next headline, next session we have, that is death session. किसका निधन हुआ था आज के दिन? That is 21st June 1970 की अगर बात करें तो he was Sukarno. Now, who is Sukarno? And again a question arises in our mind that why are we going to study about him? So Sukarno, if we talk about him, he is a personality that belongs from Indonesia. Now, who was he? इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सो इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना है. नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन. क्वेश्चन आंसर सेशन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सीजीएल को फोकस करते हुए हम डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को. So here we go. Which among the following is an administrative capital of South Africa? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? Options here are A. Cape Town, B. Pretoria, C. Bloemfontein या फिर D. Durban. So here we can see is A, B and C. All the three are capital of South Africa. But here it is being asked कि administrative capital कौन सा है South Africa का? So हमारा आंसर होगा Bloemfontein. Okay, moving ahead to the question number 2. Which among the following great revolutionaries was the brain behind the Chittagong Armory raid? चित्तगांव शास्त्रागार विद्रोही के पीछे निम्नलिखित में से किस महान क्रांतिकारी की सोच थी? ए. गणेश घोष, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. सूर्या सेन या फिर डी. लाला हरदयाल. सो अगेन हियर व्हाट वी हैव आंसर इज सी, दैट इज सूर्या सेन. सूर्या सेन का बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग था, उन्होंने ये चित्तगांव आर्मरी रेड को सक्सेसफुल किया था. So moving ahead to the next question, question number 3. The island of Sri Lanka, formerly known as श्रीलंका द्वीप, पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? A. मदागास्कर, B. तास्मानिया, C. सिलोन या फिर D. none of the above. तो यहाँ पे हमारा आंसर है C. सिलोन is the answer. We are moving ahead to the question number 4. The territory of Porus, who offered strong resistance to Alexander, was situated between the rivers of Porus, जिसने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी, का क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित था? ए. सतलज एंड बियर्स, बी. झेलम एंड चेनाब, सी. रवि एंड चेनाब या फिर डी. गंगा एंड यमुना. सो हियर व्हाट वी हैव आंसर इज बी. झेलम एंड चेनाब. नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 5. टू कंकर द एनेक्स पेशावर एंड पंजाब, महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड. पेशावर और पंजाब को जीतने व अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए महमूद गजनी ने किससे हराया था? ए. गुरीज, बी. अरब्स, बी. कारकोताकाज या फिर डी. हिंदू शाही. तो ये आंसर ऑलरेडी हमने पहले भी हिस्ट्री के क्लास में डिस्कस किया है. उन्होंने हिंदू शाही राजा को हराया था. डैट इज कौन थे वो? हमने लड़ा था, बैटल ऑफ वाहिंद के बारे में डिस्कस की थी, तो वही हिंदू शाही राजा पंजाब के जो थे, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 6. विच अमंग द फॉलोइंग वाइसराइज वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बील कंट्रोवर्सी? निम्नलिखित में से कौन सा वाइसराय इल्बर्ट विधेयक विवाद से संबंधित था? ए. लॉर्ड कर्जन, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड रिपन या फिर डी. लॉर्ड हार्डिंग. सो आंसर हियर इज सी. लॉर्ड रिपन. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. टू विच किंग बिलोंग्स द लायन कैपिटल एट सारनाथ? सारनाथ में शेर स्तंभ किस राजा से संबंधित है? ए. चंद्रगुप्ता, बी. अशोका, सी. कनिष्का या फिर डी. हर्षा. सो आंसर हियर इज बी. अशोका.
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसे अंतर्गत आती है? ए वोल्केनिक माउंटेन्स, बी रेसिडुअल माउंटेन्स, सी ब्लॉक माउंटेन्स या फिर डी फोल्ड माउंटेन्स। सो व्हाट आंसर हियर वी हैव इज डी फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम? ए क्लोरोफिल, टू बी एटमॉस्फेयर, सी लाइट या फिर डी सॉइल। पौधे मुख्य रूप से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, देख लेते हैं इसका आंसर। यस, डी सॉइल इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? ए इनकम थ्योरी, बी इन्वेस्टमेंट थ्योरी, सी प्राइस थ्योरी या फिर डी एक्सपेंडिचर थ्योरी। सो आंसर हियर इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज सी प्राइस थ्योरी। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड येस डू कमेंट, do share our videos, and yes, do all the new viewers to subscribe our channel for more such videos for upcoming exams. खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू।